Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit. The big fat jet. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture, we had learned about the epoxidation and learn about the basic concept of epoxidation. I mean which type of reagent required and which type of substrate is required. In epoxidation generally alkene is a substrate and reagent which have peroxide linkage and peroxy linkage. Now today let's continue our lecture. Okay, so in the previous lecture we had learned the relative reactivity of alkene. Now today we had learned the relative order of reactivity of reagent. I mean which type of reagent is react faster. I mean which type of reagent has fastest rate of reaction. So this is the reagent which is required to epoxidation. Okay. Now this is a peroxybenzoic acid and this is a peroxyformic acid. This is peroxyacetic acid. You have know the idea about this reagent name and their structure. Okay, this is a tertiary butyl hydroperoxide. This is the hydrogen peroxide and this is the MCPB, metachloroperbenzoic acid, and this is the MMPP. Sometimes examiner has asked only their name, not their structure. So you have to identify which is the structure of the compound. Okay, this is MMPP, monoperoxythylic acid magnesium salt. Okay, this is the basic reagent which is required to the epoxidation. Now let's learn their reactivity. Okay, relative order of reactivity. Which reagent has a fastest rate of reaction? Okay, so in a previous video we had learned the alkene is act as a nucleophile and reagent is act as a electrophile. Okay, alkene is act as a nucleophile and reagent in epoxidation reagent is act as a electrophile. Okay, it means reagent has more electrophilic character. That's why it has a more rate of reaction. Okay, in this reagent which have a more electrophilic. Let's learn this concept. Okay, so this is a reagent. Okay, here is phenyl group is attached, here is hydrogen group it's attached. Okay, this is the common in both of the reagent. This is a common, okay, in all of the reagent. This peroxide linkage is common. Look, it is clearly visible. Okay, so now which type of group is create more electrophilic character of the reagent? Okay, which type of group is generally electron withdrawing group is create more electrophilic character on the reagent. So look at this, huh? Here is an electron withdrawing group. Chlorine is electron withdrawing group. So he is pull the electron of this peroxide linkage and create a more electrophilic character in okay. Why more electrophilic character? Because of electron withdrawing group. This chlorine is pull down the electron and here is positive charge extrapolated. Now here is a CF3 group. CF3 group is also
high electron withdrawing group. Okay, there is a 3 fluorine present in this reagent. Okay, this fluorine is pull their electron, this fluorine also and this fluorine also. So it is generate a more electrophilic character on this peroxide linkage. That's why this is a more electrophilic. I mean highest electrophilic character is here. So that's why their reactivity is faster. So the order of reactivity is, and now even also look there. Okay, there is a CH3 group, CH3 group, CH3 group. You all know about the CH3 group. CH3 group is electron donating group, electron releasing group. Okay, electron releasing group. Okay, and electron releasing group donate electron this electrophilic center. So there is electrophilic center is very less, there is electrophilic character is very less. Very less electrophilic character. Okay, and here is also CH3 group. It is also donate a electron, and this electrophilic center is also have very less electrophilic character. Okay, here is more electrophilic character, and more electrophilic character is highly relative order of reactivity. Okay, मतलब कि जिसका इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. अब रेट ऑफ रिएक्शन का कौन जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, उसे इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर. मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिस रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना. तब अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा, ठीक है. जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएजेंट. Okay, so first is, okay, this is highly electrophilic character and this reagent is more electrophilic character. Why more electrophilic character? Because it has 3 electron withdrawing group. इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है. अब 3 इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ पुल करेगा, अपने तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को. यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा. तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगा. तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होगा. तो सबसे पहले में क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले में CF3COOH. ठीक है, सबसे फास्ट ऑर्डर इसका होगा. उसके बाद देखिए, उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना. विच रिएजेंट हैज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सो देयर इज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सेकेंड वन इज MCPBA. तो सेकेंड इज MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. ओके, एंड MCPBA एंड H2O2. H2O2 हैज नो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. Also here for oxyformic acid, here is also no electron withdrawing group and no electron releasing group. So these both are in equal category. So
H bond C, double bond O, bond O, bond. Okay, this is. Now third one is, इसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर किसमें है? इसमें देखिए, इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड है ना, उसके बाद देखिए क्या है, CH3 पर ऑक्सी एसिटिक एसिड है। तो उसके बाद किसका करे इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आएगा? पर ऑक्सी एसिटिक एसिड का आएगा, ठीक है। और उसके बाद किसका आएगा? सबसे लेस इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर टर्सीब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड का आएगा। CH3 का होल थ्राइस, बॉन्ड C, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे पहले कौन सा किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा? ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड का, क्योंकि उसके वो क्या कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक जनरेट कर रहा है रिएजेंट में। और हम लोग जानते हैं रिएजेंट किसकी तरह करता है? एक्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब CF3COOH का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी जो है CF3COOH का सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग बाकी रिएजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं, है ना, हम लोग बाकी रिएजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए, कई सबस्ट्रेट ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग CF3COOH को अगर यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, साइड प्रोडक्ट भी बनता है ना। तो उस साइड प्रोडक्ट को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे कोई हम लोगों ने सबस्ट्रेट लिया है एल्किन का, है ना, एल्किन का कोई ग्रुप लिया है ना, जिसमें हम लोग CF3COOH रिएजेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे साइड रिएक्शन भी हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग वहीं MCPBA यूज करें तो अगर उस ग्रुप में या उस सबस्ट्रेट में साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो MCPBA क्या होगा, उसके लिए बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सभी रिएजेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये सभी तो जानते ही होंगे, है ना। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि कौन से रिएजेंट का रिएक्टिविटी जो है वो फास्ट होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। This is the basic idea about the reagent. Now this is another type of reagent which is also used in epoxidation, DMDO. Okay, dimethyl dioxirane. DMDO, dimethyl dioxirane. Okay, their mechanism is different in other reagent. So firstly, what is the structure of DMDO? Okay, so this is the structure of DMDO, dimethyl dioxirane. 2 oxygen, here is dioxygen, and dimethyl, 2 methyl group. Okay, this is the dimethyl dioxirane. Here is also peroxide linkage, this is the peroxy linkage. Okay, and what is their mechanism? Let me take a alkene. Okay, this is the alkene and this is the reagent which is DMDO, है ना। Sometime in examiner only take their name, not structure.
but if you identify only their structure. Okay. अब देखिए, अब हम लोग सभी लोग जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो ये कहाँ करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और इस ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो फिर क्या होगा, इसका जो बॉन्डिंग क्या होगा, वीक हो जाएगा। अब बॉन्डिंग वीक होगा तो यह बॉन्ड वीक होगा और यहाँ पर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें। This is the oxygen and this is also oxygen. Here is negative charge and this is a methyl group. Okay, MEMO group. Now this oxygen is valency is extra, है ना, extra valency, so here is positive charge. Oxygen valency is only 2 but here is 3, so this is positive charge. Now if we create a reaction then the product is always neutral because neutral is more stable. जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है प्रोडक्ट का वो क्या होता है, चार्ज स्पेसिस से ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल, न्यूट्रल स्पेसिस स्टेबल होता है ना। न्यूट्रल स्पेसिस ग्रेटर देन चार्ज स्पेसिस, also पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे न्यूट्रलाइज करना है। अब न्यूट्रलाइज करना है तो कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे इसे, ये क्या करेगा, ओ निगेटिव क्या करेगा, ओ निगेटिव के पास क्या है, लोन पेयर भी है और क्या है, एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज भी आ गया है। तब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में डालेगा। अब इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा तो ये देखिए क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग है। अब ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होने की वजह से ब्रेक हो जाएगा और इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। प्लस हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। ओके, तो हमें क्या मिल गया, इपॉक्साइड मिल गया और ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो ये क्या है, DMDO का बेसिक रिएक्शन है इपॉक्सीडेशन का। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखिएगा ना। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे ये जैसे एल्किन दे दिया और उसके बाद सिर्फ DMDO बस लिख देगा। अब आपको नाम ही, अब अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो कहाँ से आप लोग रिएक्शन बनाएंगे, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ इपॉक्साइड। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है ना। क्या करें हम लोग, कोई रिएजेंट ले लें। इपॉक्सीडेशन रिएजेंट के लिए जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा था, CF3 था, तो CF3 ले लेते हैं। ठीक है, परऑक्सी लिंकेज, और इसके साथ क्या रहता है, कोई सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है जैसे CH2Cl2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 2 एल्किन है ना। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ही लिया कि कौन सा एल्किन ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो आप लोगों को सबस्ट्रेट में क्या करना है, एल्किन को आइडेंटिफाई करना है। अगर 2 एल्किन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एल्किन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखिए ये क्या है, ये जो एल्किन फर्स्ट और ये एल्किन सेकेंड, है ना।
तो ये क्या है मोनो, ये क्या है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये क्या है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। और ये क्या है डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो अब आप लोग बताइए कौन सा एल्किन मोर रिएक्टिव होगा, है ना। तो ये क्या होगा मोर रिएक्टिव होगा। क्यों मोर रिएक्टिव होगा अब आप लोग सभी जानते हैं। अब ये क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा। तो रिएजेंट कहाँ अटैक करेगा, तो रिएजेंट किस में रिएक्शन करेगा, इस एल्किन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या करेगा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। ठीक है, साथ में इसके अभी इसका रिएक्शन इसके साथ भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन ये क्या होगा मेजर होगा प्लस। अब फर्स्ट वाले एल्किन के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पास क्या है हाइड्रोजन है और यहाँ पास डबल बना और मिथाइल ग्रुप वैसे ही प्रेजेंट रहेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक क्या होगा मेजर होगा और एक क्या होगा माइनर होगा। लेस दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, इफ आई आस्क वन क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी में क्या रिलेशन है आप लोग बता सकते हैं स्ट्रक्चर को देख के कि ये कौन सा आइसोमर है, इनसियोमर है, डाइस्टेरियोमर है, क्या है ये, है ना। तो आपको देख के क्या लग रहा है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है ना, जो इपॉक्साइड का पोजीशन है वो डिफरेंट है। देखिए ना, इधर क्या है इपॉक्साइड के साथ क्या है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा है, लेकिन इस इपॉक्साइड इस ग्रुप में इपॉक्साइड के साथ क्या लगा है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा है। तो जो इसका पोजीशन है इपॉक्साइड का पोजीशन वो क्या है चेंज है। तो ए और बी क्या है पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल आइसोमर। अब पोजिशनल आइसोमर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजियो आइसोमर बोलते हैं, रेजियो आइसोमर, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जनरली पढ़ते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी, है ना। उसी सबसे हम लोगों को कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे प्रोडक्ट बना देगा और ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है ये सब पूछेगा, है ना। कौन सा रिएक्शन है, स्टीरियो सेलेक्टिव है कि डाई स्टीरियो सेलेक्टिव, है ना। तो उसी सबको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। हर साल एक न एक क्वेश्चन इसमें से एग्जामिनर पूछता ही है, नेट गेट या फिर टिफर में। सेलेक्टिविटी इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो सेलेक्टिविटी जो होता है वो कितने तरह की होता है, 3 तरह की होता है सेलेक्टिविटी, है ना। तीन तरह की सेलेक्टिविटी हम लोग स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट वन इज कीमो सेलेक्टिविटी, सेकेंड वन इज रेजियो सेलेक्टिविटी, एंड थर्ड वन इज स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो कीमियो सेलेक्टिविटी का क्या मतलब होता है, अगर किसी सबस्ट्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कौन से फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा, है ना।
ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ना, कोई भी अगर हम लोग किसी भी टाइप का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो तीन बातें हैं हमें ध्यान में आता ही है कि रिएक्शन कौन कर रहा है ना, और रिएक्शन कहाँ हो रहा है, सबस्ट्रेट में कहाँ हो रहा है, और रिएक्शन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो कैसा होगा, है ना। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, है ना, सब्जी लेने के लिए, है ना, इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए, है ना, अब जैसे सब्जी रखाया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्जी में सेलेक्टिविटी हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग अच्छा जो ताज़ा सब्जी रहता है उसके सेलेक्ट करके किस में डालते हैं, है ना, सेलेक्ट करके उसको क्या करते हैं हम लोग निकालते हैं, और जो ख़राब रहता है उसको छोड़ देते हैं। वैसे ही क्या है रिएजेंट भी वैसे ही करता है। अगर सबस्ट्रेट में 2 फंक्शनल ग्रुप है तो किसके साथ ज़्यादा रिएक्टिव करेगा, जिस फंक्शनल ग्रुप का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगा उसके साथ वो क्या करेगा, ज़्यादा रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, विच फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट फर्स्ट। ओके, reagent where react, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजियो सिलेक्टिविटी। रिएजेंट कहाँ रिएक्ट करेगा, एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, है ना, प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। ठीक है, हाउ द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द, हाउ इज द प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, है ना, रिएजेंट वेयर रिएक्ट विच फंक्शनल ग्रुप इज रिएक्ट फर्स्ट। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी को अंडरस्टैंड करते हैं। Okay, so first one is chemoselectivity. Chemoselectivity. If the substrate have more than one functional group, ओके, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, then reagent react which functional group, this is called chemoselectivity। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसेलेक्टिविटी। तो चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं कोई भी सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, है ना, अभी एल्किन की बात नहीं करते हैं, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए कोई दूसरा सबस्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, इसमें क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, NH2, और यहाँ पास क्या है, OH। ठीक है, ये क्या है, अमीन है, और ये क्या है,
एल्कोहल है। ठीक है, यहाँ बस क्या है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे मैं कोई रिएजेंट ले रहा हूँ, है ना, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई भी रिएजेंट देखो, सोचो आप लोग, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। ठीक है, R1C11O 1C11O 1CH3। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। ये क्या कराता है, एसाइलेशन कराता है। ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन कराता है। जैसे कोई मैं सॉल्वेंट ले लूँ, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्लक्स करा देते हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, एसाइलेशन रिएक्शन है ना, एसाइलेशन रिएक्शन। मतलब ये क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है उसमें क्या करेगा, एसिटेट का एडिशन करेगा, है ना, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी क्या किया, इसको जैसे मैंने क्या लिया, 1 इक्विवेलेंट लिया, है ना, 1 इक्विवेलेंट, है ना, 1 इक्विवेलेंट क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब यहाँ बस फंक्शनल ग्रुप 2 है। ठीक है, और ये क्या है, 1 है, तो किसके साथ रिएक्ट फास्ट करेगा। अब सबसे पहले तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किसकी तरह एक्ट करेगा, है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पास क्या है, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पास क्या है, निगेटिव चार्ज, तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना। और अपने पास देखिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट जो है क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पास 2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NH2, और क्या है, OH ग्रुप है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं किसका कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, OH और NH2 में, है ना, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जो जितना जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कौन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से जानते ही हैं, जो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्या होगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखेगा, उसको दूर जाने नहीं देगा। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी प्रमोट कर देगा, है ना। तो कौन सा ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, NH2 जो क्या है, मोर न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक आर्डर है। ठीक है, अब हम लोगों ने जान लिया क्या है, नाइट्रोजन को है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा, O पे अब ये निगेटिव चार्ज आएगा, और ये निगेटिव चार्ज फिर अब इसको क्या करेगा, वापस आएगा, और ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पास क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन से कौन सा बॉन्ड जुड़ गया, कार्बन, तो नाइट्रोजन से हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को जोड़ देंगे। कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O भी जोड़ देंगे, और इधर क्या है, R है, तो हम लोग क्या करेंगे, R को भी अटैच कर देंगे, है ना। उसके बाद देखिए जो लिविंग ग्रुप है, जो बाहर निकला है, वो कौन सा निकला है, हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पास क्या है, O पे निगेटिव, ये क्या है, बाहर निकला है ना, ये ग्रुप जो है बाहर निकला है। और यहाँ पर जो है क्या है, ये OH अपने पोजीशन पे ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसका नाम पता है, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, जो प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या है। हम लोग इसे किस में यूज करते हैं, फेवर में यूज करते हैं, है ना। अब आप लोगों को सभी को नाम ध्यान में आ गया हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल बोलते हैं, पैरासीटामोल। ठीक है, तो हम लोगों ने जब 1 इक्विवेलेंट लिया था तो ये क्या कर रहा था, मोर क्या होता, कीमो सेलेक्टिव हो गया था ना। ये रिएक्शन क्या होगा, कीमो सेलेक्टिविटी। देखिए हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो किसके साथ किया, सिर्फ ये एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट किया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पास तो 1 इक्विवेलेंट लिया था, तो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको कीमो सेलेक्टिविटी। लेकिन अगर मैं इसे एक्सेस में ले लूँ, अब देखिए
ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस में ले रहा हूँ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड को एक्सेस में लूँगा, एसिटिक एनहाइड्राइड को। ठीक है, बहुत ज़्यादा है, मतलब है ना, एक्सेस में मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अब ये बहुत ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसकी ये तो बोलेगा अरे यार मैं तो, मेरे पास तो बहुत कुछ है, दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता हूँ, है ना। तो ये क्या करेगा, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन भी यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन भी यहाँ अटैक कर लेगा और दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना देगा, यहाँ पास N डबल बॉन्ड O बना देगा और यहाँ पास भी O। डबल बॉन्ड O बना देगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, है ना। तो सही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कीमो सेलेक्टिविटी बोल रहे हैं कि कौन सा जो रिएजेंट है वो किस फंक्शनल ग्रुप पे फास्ट रिएक्ट करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म इजली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इपॉक्साइड, ओके, सो योर कॉन्सेप्ट आर वेरी क्लियरली। तो चलिए अगर मैं इपॉक्साइड का अगर एग्जांपल ले लेता हूँ एक, है ना, कीमो सेलेक्टिविटी में। ठीक है, चलिए जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, कोई सबस्ट्रेट ले लेता हूँ जिसमें क्या है, एल्किन भी हो और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो, है ना। मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पास, MCPB ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग सभी लोग जानते ही हैं, है ना, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि MCPB कौन सा रिएक्शन करता है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी करता है ना। बेयर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, वी विल डिस्कस दिस फर्दर, ओके, सो डोंट वरी अबाउट देयर मैकेनिज्म। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, जो कीटोन से क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना। जैसे MCPB लेते हैं तो हम लोग, जैसे ये क्या है, कीटोन है और हम लोगों ने क्या लिया, MCPB लिया, तो इससे क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। MCPB लिया तो यहाँ पर इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा और यहाँ पर R रहेगा और डबल बॉन्ड हो, ये क्या होगा, एस्टर बन जाएगा ना। तो इससे हमसे क्या मिलता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, कीटोनिक या फिर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो अभी उतना इससे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ऑक्सीडेशन में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास क्या है, दो ग्रुप है ना, ये क्या है, एल्कीन है, ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है ना, और ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, साइक्लिक कीटोन है। ठीक है, अब में MCPB हम लोगों ने लिया है और कौन सा लिया है, सॉल्वेंट लेते हैं CH2Cl2। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए कि कहाँ रिएक्ट करेगा। MCPB है तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी करता है और क्या करता है, ये इपॉक्सीडेशन भी करता है, दोनों करता है ना। पहला क्या करेगा, इपॉक्सीडेशन भी करता है और क्या करता है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन भी करता है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा। तो अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ बस कीमो सेलेक्टिविटी की बात करें तो देखिए ये जो एल्कीन है वो क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है। एल्कीन जो है क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन में पढ़ा ही है कि जो MCPB किसके तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, हाईली इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक क्लोरीन ग्रुप होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है परऑक्सी लिंकेज से, है ना। तो अब ये हाईली इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, तो हम लोग जानते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो
मोर न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब देखिए क्या हो गया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पास CH3 है और यहाँ पास भी CH3 है, तो ये क्या हो गया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो अब ये तो यहाँ पास तो नहीं बनेगा, क्यों यहाँ पास नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एल्किन के पास है। अगर ये एल्किन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता, मतलब लेस न्यूक्लियोफिलिक होता, तो हम लोग बोलते कि हाँ यहाँ पास ऑक्सीजन बना के साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर देगा, बेयर विलिगन ऑक्सीडेशन करेगा। लेकिन यहाँ पास ये एल्किन क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, क्या है, हाईली न्यूक्लियोफिलिक। तो रिएक्शन क्या करेगा, इसी के साथ ही करेगा और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, O बनेगा, है ना प्रोडक्ट। ये क्या है, CH3 और यहाँ क्या है, CH3, ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें भी हो गया, दो फंक्शनल ग्रुप है। अब दो फंक्शनल ग्रुप से क्या किया गया, एक ही फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ जिसमें क्या दिया है, ठीक है, सबसे पहले इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, साइक्लिक कीटोन ले लेते हैं और 5 मेंबर रिंग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास भी क्या है, इपॉक्साइड है, ठीक है। और हम लोग क्या लेते हैं, MCPBA लेते हैं, ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या हो गया, दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन और साइक्लिक कीटोन। यहाँ भी क्या है, एल्कीन और क्या है, साइक्लिक कीटोन है ना। तो अब देखिए अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा जो पहले रिएक्ट करेगा। अब पिछले में क्या था, पिछले जो कंपाउंड लिए थे उसमें क्या था, एल्कीन जो था क्या था, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड था ना, मोर न्यूक्लियोफिलिक था। ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब ये जो क्या है, क्या है, 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग। अब हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में स्टडी किया है रिंग स्ट्रेन के बारे में, है ना। जो 4 मेंबर रिंग होता है वो किसमें क्या होता है, हाईली स्ट्रेन होता है। ये क्या है, हाईली स्ट्रेन कंपाउंड होता है, हाईली स्ट्रेन कंपाउंड, है ना। अगर आप लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर नहीं दिखाया तो उसे देख लीजिए, है ना। पूरा रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, एक एक चीज़ को हम लोगों ने डिटेल में वहाँ स्टडी किया है, ठीक है। अब ये क्या है, हाईली क्या है, स्ट्रेन है। तो अगर ये हाईली स्ट्रेन है तो हम लोग सोचेंगे, हम लोग तो पहले चाहेंगे कि रिएक्शन इसी के साथ हो। क्यों इसी के साथ हो, क्योंकि अगर यहाँ रिएक्शन होगा तो ये क्या होगा, 4 मेंबर से क्या होगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ रिएक्शन होगा तो इससे क्या होगा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होगा। तो बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पास क्या बनेगा, 5 मेंबर जो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, है ना। और ये एल्कीन क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों, अब इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है ना, ड्राइविंग फोर्स जो है 4 मेंबर से क्या बन रहा है, 4 मेंबर से 5 मेंबर क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है ना। 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो है क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ये जो है मतलब जनरली ये क्या बताता है कि रिएक्शन हो क्यों रहा है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन क्यों रहा है। तो इसका जो ड्राइविंग फोर्स है क्या है, वो रिलीफ इन स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन से क्या हो गया, रिलीफ हो गया। अब 5 मेंबर क्या होता है, 4 मेंबर से लेस स्ट्रेन होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास इपॉक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पास क्या होगा, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कीमोसेलेक्टिविटी को अच्छे से समझ ही लिया होगा। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में हम लोगों ने क्या देखा था, रेजियो सेलेक्टिविटी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकेंड इज regio selectivity. If the substrate have two different alkene, then reagent where react fast. This is called regio selectivity. ओके, दिस इज कॉल्ड रेडियो सेलेक्टिविटी, है ना। अगर सबस्ट्रेट के पास दो डिफरेंट एल्किन है तो जो रिएजेंट है वो कहाँ पहले रिएक्ट करेगा, तो इसे भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, डिफरेंट हम लोग सबस्ट्रेट ले रहे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट मोर देन वन एल्कीन आर प्रेजेंट। तो चलिए, इसमें क्या है, दो तरह के एल्कीन है ना। ये क्या है, पहला और ये दूसरा, दो तरह के एल्कीन है ना। तो अब देखिए कहाँ पहले इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। ये एल्कीन जो है वो कहाँ ये जो MCB है कहाँ इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, ये कौन सा एल्कीन है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ना। देखिए यहाँ बस क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के साथ क्या करेगा, ये इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पास क्या कर देगा, इपॉक्साइड बना देगा। अब ये क्या रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या तीन तरह के एल्कीन है, इसमें भी दो तरह के एल्कीन है। ये भी सेम एल्कीन है, ये भी सेम एल्कीन है। क्या है सेकंड, तो ये क्या है, टेट्रा सब्स्टिट्यूट है। और ये दोनों क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो कहाँ रिएक्शन फास्ट पहले करेगा, ये क्या करेगा, सेकंड पे रिएक्शन पहले करेगा। तो सेकंड में पहले क्या करेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजियो सेलेक्टिविटी बोलता है। मतलब अगर दो डिफरेंट एल्कीन है तो वो कहाँ पहले रिएक्ट करेगा, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजियो सेलेक्टिव बोल रहे हैं। अब चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So third one is stereo selectivity. ओके, स्टीरियो सेलेक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे कि
कि प्रोडक्ट का स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा होगा। ऑफ द प्रोडक्ट है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा होगा प्रोडक्ट का, है ना। तो चलिए इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, अब ये क्या है, एल्कीन है ना। और जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई इपॉक्सीडेशन वाला रिएजेंट ले लेते हैं ना, MCPBA। जितने भी रिएजेंट मैंने बताया है उसमें से आप कोई भी रिएजेंट ले रहे हैं ना, मैं जनरली MCPBA ही ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp2 है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हैं जियोमेट्री कैसा होता है, प्लेनर होता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। तो यहाँ पर इसके क्या है, दो फेस होंगे, दो फेस। देखिए अगर मैं नॉर्मल एल्कीन बनाऊँ, ये क्या है, एल्कीन है। ठीक है, तो इसके क्या है, दो फेस है। ठीक है, ये क्या है, दो फेस है। ये क्या है, अप साइड है, अप फेस, और एक क्या है, डाउन फेस। ठीक है, ये क्या है, डाउन फेस है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, वैसे क्या होगा, यहाँ पर इसके दो फेस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है, अप फेस है, और ये क्या है, डाउन फेस। अब हमें रिएक्शन कराना है ना, तो रिएक्शन हम लोग कहाँ से कराएं, अप फेस से कराएं कि डाउन फेस से कराएं। देखिए अगर मैं MCPBA को अप फेस से लाता हूँ, तो देखिए अप फेस में क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप के साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, है ना। ये क्या करेगा, रिपल्सन करने लगेगा। तो अप फेस क्या है, हिंडर्ड है। ओके, अप फेस इज हिंडर्ड। तो यार जब ये क्या करेगा, जब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप के साथ जब ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो उससे क्या होगा, एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना, और सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। तो हम लोग अप फेस से नहीं लाएंगे, हम लोग अप फेस से क्यों लाए, जब उसमें से रिपल्सन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन फेस से लेके आएंगे। अब सेकेंड इज क्या है, डाउन फेस क्या है, लेस हिंडर्ड है। डाउन फेस क्या है, लेस हिंडर्ड है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन क्या करेंगे, डाउन फेस से ही करेंगे। तो जो रिएक्शन कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे, डाउन फेस से ही कराएंगे। तो यहाँ पास क्या है, सेलेक्टिविटी है ना, यहाँ पास क्या है, सेलेक्टिविटी है। अप फेस क्या है, हिंडर्ड है, तो हम लोग अप फेस से नहीं डाउन फेस से करेंगे। तो इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, डाउन फेस से होगा इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। CH3 ग्रुप है ना, और कितना मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब डाउन साइड से क्या बनेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, अप साइड क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें क्या रहेगा, जिसमें इपॉक्साइड क्या रहेगा, अप साइड से ही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, माइनर होगा। तो ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर होगा।
ठीक है, तो इससे देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फेसेस को देख रहे हैं हम लोग, कौन सा फेस जो है लेस हिंडेड है। हमेशा आप लोग जब भी सब्सट्रेट दिया रहेगा ऐसा सब्सट्रेट है ना, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है जो हिंडेड है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, अप फेस हिंडेड है कि डाउन फेस हिंडेड है। जो फेस लेस हिंडेड होगा वहीं से क्या होगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अगर देखिए अगर इसमें तो क्या है, इसमें क्या है, फेसेस जो थे क्या थे, नॉन इक्विवेलेंट है ना, फेसेस नॉन इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मैं ऐसा एग्जांपल लूँ जिसमें क्या हो, फेसेस क्या हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या है, अप साइड में भी हाइड्रोजन है और क्या है, डाउन साइड में भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, MCPB ले ले, कोई और रीजन ले लेता हूँ ना, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आप लोग तो आप तो सिर्फ MCPB ही ले रहे हैं, है ना। और CH2Cl2। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो फेसेस है वो क्या है, फेसेस जो है नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि देखिए अप साइड में भी हाइड्रोजन है और डाउन साइड में भी हाइड्रोजन है। तो जो फेसेस है वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। ये जो फेसेस है वो क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। फेसेस आर नॉन इक्विवेलेंट। नहीं, फेसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट तो इसमें था, है ना, यहाँ क्या था, नॉन इक्विवेलेंट फेस था। हियर फेसेस आर इक्विवेलेंट। तो क्या करेगा, जब दोनों फेस इक्विवेलेंट है तो हम लोग दोनों कहीं से भी रिएक्शन करा सकते हैं, अप साइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, डाउन साइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें तो रिपल्सन का चांस ही नहीं है ना। तो हमारे पास क्या बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। एक इपॉक्साइड कहाँ बनेगा, अप साइड से बनेगा, और एक इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, 5 मेंबर रिंग है। ओके, एक इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से बनेगा। एक इपॉक्साइड कहाँ से, डाउन साइड दिखा दो। तो ये क्या बनेगा, 50% बनेगा ना, ये 50% बनेगा और ये भी 50% बनेगा। और जब भी किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर 50% बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, है ना। मैंने साइक्लिक कंपाउंड में इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको अच्छे से समझाया, इस आप साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टीरियो सेलेक्टिविटी भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, है ना, एक और एग्जांपल से हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो देखिए उसमें कैसे होगा। तो जैसे मैं नॉरबोर्नेन सिस्टम ले लेता हूँ, आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे नॉरबोर्नेन सिस्टम को, साइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है ना। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड को ही स्टडी करवाया है, ताकि आप लोगों को ये सबको क्या करना है, इसका 3D स्ट्रक्चर को आप लोगों को आइडेंटिफाई कर दे बने। उसमें हम लोग 3D स्ट्रक्चर को एकदम डिटेल में स्टडी किया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो आप लोग वॉच कर लीजिए, है ना। तो देखिए ये क्या है, नॉरबोर्नेन सिस्टम है। पहले नॉरबोर्नेन का मैं इसका बता देता हूँ ना, ये क्या है, नॉरबोर्निन है। पहले नॉरबोर्नेन को सिंपल समझते हैं, है ना। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन। सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब मैं सभी जगह पे हाइड्रोजन नहीं दिखा दे रहता हूँ ना, वो आपको अंडरस्टूड है। इससे क्या होता है, समय बचता है। नहीं तो सभी पोजीशन पे अगर मैं हाइड्रोजन दिखा दे रहा हूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, इससे मेरा समय बचता है। आप लोग जब आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते हैं तो सभी जगह पे हाइड्रोजन दिखा दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, 2 फेस होता है। एक क्या होता है, एक्सो फेस होता है, एक क्या होता है, एंडो फेस होता है। जो अप साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो फेस बोलते हैं, और जो डाउन साइड बोलता है उसको एंडो फेस बोलते हैं, डाउन साइड। और ये क्या है, अप साइड। ठीक है, ये क्या है, अप साइड और ये क्या है, डाउन साइड, है ना। तो अब देखिए, अब देखिए जैसे अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा, है ना, जैसे कोई रिएजेंट ले लेता हूँ, MCPB है ना, CHCl3। ठीक है,
तो देखिए जो अप फेस है ये क्या है, अप साइड क्या है, एक्सो फेस है, और डाउन साइड क्या है, डाउन साइड क्या है, एंडो फेस है। तो जो इपॉक्साइड बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एक्सो फेस से बनेगा। अब एक्सो फेस से क्यों बनेगा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब एक्सो फेस में देखिए कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पास 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्सो साइड से क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सो साइड जो है लेस इंडेड है। क्यों लेस इंडेड है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन जो है एक्सो फेस में प्रेजेंट है ना। लेकिन अगर हम लोग डाउन साइड से कराएंगे तो देखिए ये 1 हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये चौथा हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन जो है क्या है, वो एंडोफेस में है। और एंडोफेस में जो केविटी है वो क्या है, ये क्या है, कॉन्वेक्स टाइप है ना। तो ये जो क्या है यहाँ से अगर MCP भी यहाँ से आएगा तो इन सभी के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एंडोफेस से नहीं, हम लोग इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन कहाँ से करेंगे, एक्सोफेस से करेंगे। तो एक्सोफेस से अगर हम लोग इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अप साइड में क्या करेंगे, हम लोग इपॉक्साइड को दिखा देंगे। ये क्या है, अप साइड को इपॉक्साइड दिखा देंगे, है ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पास क्या कर दूँ, डबल बॉन्ड ले लूँ तो, है ना, तो हमारे पास एक्सोफेस में क्या है, इपॉक्साइड बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ इस जंक्शन यहाँ बस क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह में अगर मैं CH3 ग्रुप ले लेता हूँ, यहाँ बस क्या ले लेता हूँ मैं, CH3 ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं यहाँ बस अगर मैं MCP भी लूँ और इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करूँ तो देखिए अगर यहाँ से MCP भी आएगा तो ये क्या करेगा, मिथाइल के साथ क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पास क्या है, एक्सोफेस क्या है, हिंडर्ड है, एक्सोफेस आर हिंडर्ड, हिंडर्ड बोल दो या फिर क्राउडेड भी बोल दो, है ना। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, एंडोफेस से। एंडोफेस क्या है, लेस हिंडर्ड है। तो एंडोफेस से ये क्या करेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इपॉक्साइड जो बनेगा कहाँ बनेगा, डाउन साइड में बनेगा, है ना। तो ये क्या कर देगा, एंडो फॉर्मेशन एंड एंडो प्रोडक्ट, एंडो प्रोडक्ट, ये क्या है, एक्सो प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, है ना, इसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, डिकलिन सिस्टम का लेते हैं ना हम लोग। डिकलिन हम लोगों ने स्टडी किया ही है ना। ठीक है, यहाँ पास क्या है, CH3 और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। अगर अब हम क्या करें, इसका रिएक्शन कराएं किसके साथ, MCPBA के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आपको डायरेक्ट ऐसे रिएक्शन नहीं करा देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना। साइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने डिटेल में डिकलिन का स्टडी किया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले क्या करते हैं, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, ट्रांस जियोमेट्री है ना। तो ट्रांस में हम लोग क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए ये कार्बन हो गया, इस कार्बन के बाद फिर वन टू 1 2 3, ये 4, है ना, ये कार्बन 4। अब जो यहाँ पर बनेगा वो कैसे बनेगा, ठीक है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इसका 3D स्ट्रक्चर है। अब अप साइड में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है, ट्रांस डिकलिन है ना।
अब हम लोगों को MCPBA का क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। तो MCPBA देखिए, अगर MCPBA इसके भी क्या है, दो फेस है ना, एक अप साइड एक डाउन साइड। अब अगर MCPBA अप साइड से आता है तो ये क्या करेगा, CH3 के साथ क्या करेगा, डाईएक्सियल 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा ना, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर ये डाउन साइड से आता है तो डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वजह से क्या करेगा, यहाँ लेस हिंडर्ड है, ये क्या है, मोर हिंडर्ड। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, लेस हिंडर्ड साइड से। और लेस हिंडर्ड साइड क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टोइकियोकेमिस्ट्री क्या है, डाउन साइड में है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। कहाँ, डाउन साइड में हम लोगों ने क्या कर दिया, इपॉक्साइड, डाउन साइड में हम लोगों ने क्या किया, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसका जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, इपॉक्साइड को डाउन साइड में दिखा दीजिए, अप साइड में CH3 ग्रुप और डाउन साइड में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये था कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी, है ना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये पता बस होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या, किस चीज़ को बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी, किस चीज़ को कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं और किस चीज़ को रेजियो सेलेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।